So here we are doing example 3 from surface area and volume. Example 3 in which it is given that a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. यानी एक रॉकेट है जिसके नीचे बेस में सिलेंडर लगा हुआ है which is mounted by a cone. Figure is given. सामने फिगर बोर्ड पर है, नीचे एक सिलेंडर फिट है, उसके ऊपर एक कोन फिट है. The height of the entire rocket is 26. Entire height टॉप से लेकर बॉटम तक that is 26 and the height of the conical portion is 6. जो सिर्फ कोन वाला पार्ट है उसकी हाइट कितनी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर. The base of the conical portion has a diameter 5. अब देखिए बेटे जो conical portion है उसका बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड तक जा रहा है that is 5 सेंटीमीटर और जो हमारा cylindrical portion है that is of diameter 3 सेंटीमीटर. यानी इनर डायमीटर आपकी 3 सेंटीमीटर गिवन है. Find the here it is written that if the conical portion is to be painted orange, अगर आपको पेंट करना है conical portion पे orange color and at cylindrical portion you have to color yellow. Find the area of rocket that has to be painted. अब बताइए ऑरेंज कलर में कितना एरिया लगेगा जो आपको पेंट करना है and similarly for yellow color. So here can I write height of cone small h? We can represent data of cone by small alphabet, that is a small h is smaller, and data of cylinder B with capital letters, that is capital H and capital R. So height of cone, that is a small h is given by 6 centimeter and radius of cone given by small r is equal to diameter upon 2 and cone has diameter 5. So 5 upon 2 that can be written as 2.5 centimeter. Now come to cylindrical part. Cylindrical part में भी आपको दोनों चीजें लिखनी होती है height and this one radius. So we will write also height of cylinder is equal to, better we write comma and then capital H. What is the height? देखिए टोटल 26 है, कोन की 6 माइनस कर दो तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी 20 सेंटीमीटर is the height of cylindrical portion. What about radius of cylinder? That is given by capital R, that is diameter upon 2, 3 upon 2 that is equal to 1.5 centimeter. Is it clear? Yes. ठीक है, तो चलिए अब बताइए बेटे सबसे पहले कौन सा एरिया निकालें that is easy to calculate. कोन के लिए बेटे चलिए कोन का एरिया निकालना है. उससे पहले आसान है हमारा सिलेंडर का एरिया निकालना. ठीक है, चलो पहले कोन का ही वर्क करते हैं. तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कोन में कहाँ कहाँ पेंट करना है. मैम सीएस पर मैम देखो ऊपर तो सीएसए पे होगा, जैसे आपकी कोन ऐसे बनी हुई है, ये अंदर सिलेंडर फिट है ना इसके ऐसे. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोन के हमें आउटर एरिया पर पेंट करना है, इसे बोलते हैं सीएसए ऑफ कोन. क्लियर. अब देखिए सिलेंडर यहाँ पर इंसर्टेड है, ये एक्स्ट्रा एरिया तो बाहर निकला हुआ है ना, इस पर भी तो पेंट करना है हमें, बाहर की तरफ जो निकला हुआ है. दिस एक्स्ट्रा एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग. कैसे निकल रहा है, बड़े सर्कल में से अगर हम ये वाला माइनस कर दे तो एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा. तो क्या हम कह सकते हैं बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. वी विल गेट दिस एक्स्ट्रा पोर्शन व्हिच हैज टू बी पेंटेड ऑरेंज, दैट इज पेंटेड ऑरेंज. अब देखिए बेटे सीएसए ऑफ कोन के लिए चाहिए पाई आर एल. एल यहाँ गिवन नहीं है, स्लाइड हाइट. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट स्लाइड हाइट ऑफ कोन. कैसे निकालें स्लाइड हाइट ऑफ कोन? राइट डाउन द फॉर्मूला एंड ट्राई टू फाइंड आउट. So here we know L is equal to root, formula is R square plus H square and कोण के लिए हमने स्मॉल अल्फाबेट यूज किया तो आप यहाँ स्मॉल ही लिखेंगे. देखो कोण के लिए बेटे स्मॉल h स्मॉल r है ना, सो स्मॉल r square plus स्मॉल h square root. What is the value of radius of cone? 2.5 whole square plus height is 6 square. So L is equal to root 6.25 plus 36
L is equal to root on adding them 42.25. 42.25. Now we need to find square root of 42.25. Do it and tell me answer. Yesterday I told you how to calculate. Start immediately. Pairs. Again I am telling you. Right side and left side pair. 42 में टेबल चलाना है तो 6 6 by 36. माइनस करके बताओ बेटे कितना आएगा? 6 point here 25 नीचे आएगा. 6 and 6 12. 125 5 are 625 answer. So square root of 42.25 is 6.5. So stand height will be 6.5 centimeter. Clear? Now you will note with the help of video. Okay, I am rubbing in between. So now I got L. I have radius and height already with me. Now I will write area to be painted. Which one? Orange? Is equal to CSA of cone. CSA of cone plus base area of this bigger circle. That means it is related to cone. Base area of cone minus base area of circle. Circle means cylinder. यानी आपने क्या करना है? CSA ऑफ कोन को ऐड करना है इस एक्स्ट्रा पोर्शन में. एक्स्ट्रा पोर्शन कैसे आएगा? बेस एरिया ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको हटाना है ताकि एक्स्ट्रा आउटर पोर्शन आ जाए. नाउ आई कैन रब दिस फिगर. अब आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें करनी है कैलकुलेशन. एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन पाई RL. स्मॉल r and small h. So pi RL plus base area of cone. Cone means pi small r square minus base area of cylinder capital R square. Clear? Now I have to put values. Before that I can take common if it is possible. बेटे कॉमन कुछ आ रहा है? पाई सब में आ रहा है. ठीक है. So I can take pi common. Inside I am getting small r L plus r square minus capital R square. Now I can put value. Pi I have to use 3.14. So 3.14 bracket radius of cone 2.5 multiply slant height 6.5 plus radius square 2.5 square minus capital R square 1.5 square. Now solve it and tell me answer fast. फटाफट से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए. Now that is equal to, I hope you got the same thing, 3.14 multiply. After solving this bracket you will get 20.25. So 20.25 on multiplication will give me 63.585 centimeter square or cube? Square, because we are considering area, not volume. Is it clear? Yes. Now difficult part is covered. अब हमें करना है इजी पार्ट. इजी पार्ट यानी आप सिर्फ येलो कलर देखना है कहाँ कहाँ पेंट होगा. तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं हाइट ऑफ कोन. We don't need data of cone. Now we have area to be painted yellow is equal to. अब येलो पेंट कहाँ होगा? देखो बेटे सिलेंडर के पूरे आउटर सरफेस पर यानी CSA पर होगा और नीचे से वो कवर्ड है बेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी CSA ऑफ cylinder plus base area of cylinder. Now put their values. CSA of cylinder formula
2 pi RH. Capital or small? Cylinder data has been written with capital letters. So 2 pi capital RH plus pi capital R square. We can take common. We are taking here common pi R. So I am writing pi R bracket में रह जाएगा बेटे 2h plus R. Pi 3.14. Radius of cylinder was 1.5. Height of cylinder 20 plus 1.5. Again you have to solve, then tell me answer. into 1.5 will give you 4.71. And on solving 40 plus 1.5, 41.5. 41.5. And now on multiplication both, I will get 195.465 centimeters square. And this is the area that has to be painted yellow. Yellow color ज़्यादा नीट है yellow color की in case of orange color. बस आपको इसमें दोनों में एरिया बताना है, कंपैरिजन नहीं करना है. Only area you have to tell. I hope you understood. ऑरेंज कलर में आपको CSA प्लस जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर निकल रहा है, दैट मींस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. रिंग का एरिया आपको निकालना था. सिलेंडर के लिए आपको कट सरफेस एरिया लेना है और नीचे का बेस एरिया लेना है. दिस वे यू हैव टू कंप्लीट एग्जांपल 3 एंड इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल 4. In example 4, it is given that Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end. Figure is given in your book. देखिए एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसके अंदर क्या है, डिप्रेशन डाला हुआ है, अंदर की तरफ एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन डाला हुआ है. हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन. आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है. अब बताइए इसमें कौन सा एरिया विजिबल है, वही टोटल में आएगा. क्या क्या नजर आ रहा है आपको इस बर्ड बाथ के अंदर? सबसे पहले किसी के ऊपर रखा हुआ इट मे बी अ स्टूल, तो वो पोर्शन तो स्टूल ने कवर कर लिया. इसका बेस वो तो हमें विजिबल नहीं है, सिर्फ विजिबल है इसका बाहरी हिस्सा. दैट मीन्स वी हैव CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक डिप्रेशन अंदर की तरफ है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर. कुछ और तो नहीं नीड है, ऐड करेंगे दोनों को आंसर आ जाएगा. नाउ यू विल ट्राई एग्जाम्पल 4 योरसेल्फ. नाउ कम टू प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 13.1. बताइए किसमें प्रॉब्लम आई है. So now here question number 6. In this question it is given that you have a medicine capsule in the form of cylinder which has two hemispherical ends. Dimension are given. Entire capsule has length 14 mm and diameter is 5 mm. With the help of that हम लोगों ने रेडियस और हाइट सब मेंशन कर दी है. देखिए अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगी 2.5. So I have written 2.5 and I know हेमिस्फीयर में उसकी रेडियस और हाइट इक्वल होती है, तो ये 2.5 तो ये भी 2.5. सिमिलरली ये डाटा वहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, दोनों एक जैसे हैं. तो देखो बेटे 2.5 हेमिस्फीयर की हाइट, उधर से भी 2.5 हेमिस्फीयर की हाइट. हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल. अब कैप्सूल में जो भी एरिया विजिबल है वो टोटल में आ जाएगा. हमें दिख रहा है ये वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन एरिया जिसे बोलते हैं कट सरफेस एरिया. Then we are looking at the CSA of hemisphere. उधर भी एक CSA of hemisphere हमें नजर आ रहा है. तो इसका मतलब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा. So I will write total surface area of capsule is equal to CSA of cylinder plus CSA of two hemispheres. Clear? Now for that I need their dimensions. अब dimension चाहिए तभी फॉर्मूला यूज कर पाएंगे. अब dimension देखो क्या क्या है. Here रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. सबसे पहले हम हेमिस्फीयर पर कर रहे हैं. हेमिस्फीयर की रेडियस 2.5. ठीक है. सो आई एम राइटिंग 2.5 मिलीमीटर. एवरीथिंग इज इन मिलीमीटर हियर. आई नीड ओनली रेडियस फॉर हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर में हाइट की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस होता है. अब आते हैं सिलेंडर पर. ऑल्सो रेडियस ऑफ सिलेंडर both are sharing same radius.
देखो दोनों सेम रेडियस से बाउंड है, ये वाली फिगर भी और ये वाली फिगर भी, तो इसका मतलब यहाँ भी हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। एंड व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ सिलेंडर? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट यहाँ से स्टार्ट की और लास्ट एंड तक गए तो 14 थी, कि कंप्लीट कैप्सूल की है। हमें सिर्फ किसकी चाहिए? यहाँ से स्टार्ट करके हमें चाहिए यहाँ तक सिर्फ सिलेंडर की चाहिए। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा हाइट और वो एक्स्ट्रा हाइट माइनस करनी पड़ेगी। तो हमने पहले दोनों हाइट को प्लस कर लिया, जो एक्स्ट्रा माइनस करनी है, तो 2.5 2.5 5 देगा मिलकर। हमने 14 में से जब 5 हटाया कंबाइन करके तो हमारा आंसर रह गया सिर्फ 9। इसका मतलब जो हम कंसीडर करेंगे सिलेंडर के लिए वो 9 कंसीडर करेंगे। सो आई एम राइटिंग हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 9 mm, दैट इज मिलीमीटर। Now formula, total surface area of capsule is equal to CSA of cylinder plus CSA of two hemisphere। अब देखिए आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर तो देते हैं, तो अगर आप दो हेमिस्फीयर की जगह वन स्फीयर लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप वन स्फीयर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप दो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए बताइए CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला 2πRh। देखो दोनों में रेडियस सेम है, तो स्मॉल r दोनों के लिए काफी है, कैपिटल लेने की जरूरत नहीं है ना सिलेंडर के लिए। सो आई कैन राइट 2πRh। CSA of two hemisphere means 2 multiply CSA of one hemisphere, so I am writing 2 multiply one hemisphere का CSA 2πr²। बहुत इजी है, बस अब कैलकुलेशन करनी है। बिफोर दैट आई कैन टेक कॉमन। बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 2πr, देखो तीनों में आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा 2πr आउटसाइड h प्लस ये वाला 2 रह गया है ना भी 2r। पुट देयर वैल्यूज, we need to put 22/7। Yes, ma'am. So 2 into 22/7 into, put their values and calculate answer। Ma'am, 220. Not final answer, bracket के बाहर बताओ मेरे क्या है। 107 without point। 110.7. 110.7 correct। Now inside bracket 40. 25 to 5.0 and 9 14, 7 to the 14, so I am getting 220 millimeter square। That means 220 millimeter square is the total surface area of this capsule जो बना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से और CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? नाउ योर वर्क, your homework is to complete exercise 13.1 and all examples, then we will try next exercise tomorrow। ठीक है, tomorrow is off। चलो complete your work of this exercise, then we will discuss rest of the exercises in our next lecture। Thank you।